गुड मॉर्निंग बच्चों, प्लीज से हेलो। हेलो बोलो जरा, आवाज चेक करना। हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, एम आई ऑडिबल टू एवरीबॉडी? हेलो बच्चों, एम आई ऑडिबल? हेलो हेलो, ओके ओके, ठीक है। चलो, वी विल स्टार्ट नाउ। yesterday we have seen Nernst equation, ठीक है? So I will tell you today how to substitute the equation or the reaction into the Nernst equation. अभी ना बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, एक सेकेंड ना। Suppose I will say I have a cell which is this is copper solid CuSO4 1 molar, ZnSO4 1 molar and Zn solid. ठीक है? My question is I have to use this into the Nernst equation. So first of all I will write down reduction half reaction. Correct? Zinc का reduction होगा Zn2 plus 2 electrons gives you Zn solid. Oxidation half reaction, ठीक है? So copper solid is getting converted into Cu2 plus with the loss of 2 electrons. Now 2 electrons gets cancelled. I will write down here Zn2 plus copper solid. It will give you Cu2 plus Zn solid. यहाँ तक सबको तो पता है, ठीक है? Now we have to apply this into the Nernst equation. What is Nernst equation? E of the cell is equals to E naught of the cell minus 0.0592 upon N log to the base 10 concentration of product upon concentration of reactant. Now E naught of the cell will be given to you minus 0.0592 upon N means number of electrons involved. How many electrons are involved over here? 2. So I will write down here 2. ठीक है? Log to the base 10 concentration of product. So these two are my product. So I will be writing here concentration of Cu2 plus and concentration of Zn solid divided by concentration of Zn2 plus and concentration of Cu solid. यहाँ तक समझा? पहले इतना बोलो. Is it very clear what I did? Concentration of product upon concentration of reactant. Is it very clear? प्लीज से यस और नो. क्या हो गया तुम लोग को? रिप्लाई नहीं कर रहे हो तुम लोग. इज इट क्लियर दिस मच पार्ट? यस मैम. ओके, ठीक है. अब देखो मैंने क्या बोला था. concentration of pure solids means concentration of Zn solid and concentration of copper solid is always equal to 1 molar क्योंकि purest substance है तो इसका concentration 1 हो जाएगा. तो एक्चुअली में मेरा इक्वेशन क्या होगा पता है? E of the cell is equals to E naught of the cell minus
0.0592 upon 2 log to the base 10 concentration of Cu2 plus divided by concentration of Zn2 plus। इस तरह से मेरा नर्न्स इक्वेशन अप्लाई हुआ इस इक्वेशन के लिए। तो इन शॉर्ट मैं क्या करूंगी, सॉलिड वाला पार्ट लिखूंगी नहीं, डायरेक्टली आई विल राइट डाउन हियर कॉपर डिवाइडेड बाय जिंक। समझा कैसे अप्लाई करते मैम हैं? ये प्रॉपर्टी सिर्फ मेटल्स के लिए है? Yes. Whenever it is a pure solid, you have to write down this as 1 directly. अब मैं एक गैस वाला एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है? I will write down here platinum solid is in contact with hydrogen gas 1 atmosphere, ठीक है? HCl 1 molar. It is in contact with कलू PB ले लेती हूँ, PB PbSO4 is in contact with PB solid, ये हो गया 2 मोलर। चलो यहाँ पे लिखती हूँ रिएक्शन, ठीक है? PB will undergo into the reduction, so reduction half reaction, PB का reduction होगा बराबर। So we will write down here PB2 plus will take 2 electrons, get convert into PB solid, then oxidation half reaction, ऑक्सीडेशन किसका होगा, हाइड्रोजन का। So hydrogen gas is converted into H plus with the loss of electron। यहाँ पे 2 है तो ये भी 2 और ये भी 2, ठीक है? Now this gets cancelled. You will be writing here Pb2 plus hydrogen gas will give you Pb solid plus 2H plus। अब इसका नॉन्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखो E of the cell is equals to E naught of the cell minus 0.0592 upon 2. Is it right? 2 electrons are involved. Log to the base 10. Concentration of product. अभी मैं लिखूंगी नहीं directly. I will write down here concentration of H plus square. Why square? Because it was 2. Divided by concentration of Pb2 plus। और हाइड्रोजन का प्रेशर कितना है, देखो 1 है ना, 1 एटमॉस्फेयर। किधर गया, गिरा 1 एटमॉस्फेयर। तो डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते हो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है? प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना था, 1 ही था ना। तो मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, E of the cell is equals to E naught of the cell minus 0.0592 upon 2 log to the base 10 concentration of H plus square divided by concentration of Pb। आया समझ में नॉन्स्ट इक्वेशन? कभी ये बहुत रेयर केस में होता है कि हाइड्रोजन का प्रेशर कुछ अलग होता है, हमेशा गैस का प्रेशर वो लोग 1 ही देते हैं, समझा? दिस इज अ वेरी वेरी रेयर केस दैट दे मे गिव यू सम अदर प्रेशर। ये समझ आ गया अच्छे से बच्चों? इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, एक और एग्जांपल देती हूँ, रुक जाओ अभी ना। हाफ सेल लेती हूँ, ठीक है? Pt solid and I am writing here SN4 plus to SN2 plus। अब इसका सिर्फ रिडक्शन रिएक्शन लिखेंगे। So I will write down here SN4 plus will accept 2 electron and get reduced to SN2 plus। इसका नॉन्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, E of the cell is equals to E naught of the cell minus 0.0592 upon 2 log to the base 10 concentration। अब दोनों लिखेंगे ना, SN2 plus divided by concentration of SN4 plus। समझा कितना इजी था, देखो। अच्छा, अभी सपोज मैंने लिखा कि Pt solid FeSO4, इसका कैसे हो जाएगा, Fe2 plus will take 2 electrons, gets converted into Fe solid। समझा ये रिडक्शन रिएक्शन? इसका नॉन्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, E of the cell is equals to E naught of the cell minus 0.0592 upon 2 log to the base 10। ये 1 है ना, तो क्या लिखेंगे, 1 divided by concentration of Fe2 plus। क्लियर बच्चों? Have you all understood this what I did?
नॉन स्टिक Yes, इक्वेशन कैसे ma'am. अप्लाई करते हैं, सबको समझ आया? ये प्रेशर वाला भी समझ आया? बहुत इजी है, ऐसे कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो मैंने क्या बोला था, मैम अगर आपने आपने एक, वो हाँ, एफी सॉलिड क्यों नहीं लिखा उसमें? एक सॉलिड क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन 1 रहता है ना। कहीं पे भी देखो अच्छा सॉलिड वाली चीजें नहीं लिखी है। यहाँ पे प्रोडक्ट में Pb2+ भी तो मैंने नहीं लिखा, ठीक है, क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 होता है। पहले वाले में भी देखो लिखा था, लेकिन वो 1 हो गया, इसलिए बाद में निकल गया वो। तो क्या लिखने अच्छा, का तो डायरेक्टली, जो सीओ चीज टू प्लस न्यूट्रल रहते हैं हाँ, वो उनका मोल। नहीं लिखने का, यस यस। जो सॉलिड रहेगा ना वो नहीं लिखने का, तो डायरेक्टली जो चार्ज वाली चीजें है वो लिखने का, समझा? यहाँ पे भी देखो H+ का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय Pb2+, और प्रेशर का भी 1 ही रहता है, खाली लिख दो ये। कभी कभार बहुत रेयर केस में नीट जेडब्ल्यू में दे में गिव ऐसे अलग प्रेशर, अदरवाइज वो सेम ही रहता है, ठीक है। ये पता है एग्जाम में, सॉरी, क्वेश्चन कैसे आता है? दे विल गिव यू दिस इक्वेशन एंड दे विल से द करेक्ट नॉन इक्वेशन फॉर दिस इक्वेशन इज, और बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं। अभी एक और जोक होता है, बताती हूँ। यहाँ पे क्या करते हैं पता है, प्लस लिखेंगे प्लस, और इसको रिवर्स करेंगे, वो भी सही है ना? बोलो, करेक्ट है ना वो? यस। यस और नो? हाँ। तो वहां पे भी गड़बड़ करते हैं बच्चे, उनको लगता है नहीं प्लस नहीं होगा। अगर प्लस है तो ये देखो ये उल्टा हो जाएगा, लॉग का रूल है ना, व्हेन इट इज प्लस इट विल बी रिवर्स, सो Pb2+ विल गो अप और ये नीचे आ जाएगा। यहाँ पे अगर प्लस लिखा तो मैं उल्टा भी लिख सकती हूँ, अंडरस्टूड दिस? तो इस तरह से नॉन इक्वेशन अप्लाई करते हैं, सबको समझाओ। तो नॉन इक्वेशन में इंपॉर्टेंट क्या था मुझे बोलो? इक्वेशन, रिएक्शन आना चाहिए, सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन रॉन्ग हो गया मतलब पूरा बर्बाद है, कुछ नहीं आएगा। इससे सेल रिएक्शन में तुम लोगों को बहुत सारा प्रैक्टिस कराया है, समझा बच्चों अच्छे से नॉन इक्वेशन? कुछ डाउट है किसी को? एनी क्वेश्चन बच्चों? श्योर? चलो लिख लो मिस तो ये फाइनल फटाफट। इक्वेशन ये वाला है ना? कौन सा? हाँ ये मिस वाला फाइनल फाइनल इक्वेशन, इक्वेशन। हाँ। हाँ यस यस। तो ये देखो ना, ये 1 हो गया ना, तो 1/Fe2+। यहाँ पे Sn2+ था तो मुझे लिखना पड़ा, चार्ज वाली चीजें लिख देने का, खाली सॉलिड वाली चीजों को 1 कर देने का, समझा? हाँ मिस। चलो लिख लो इतना फटाफट से नॉन इक्वेशन। इसके बाद मैं तुम लोगों को गिव्स एनर्जी और क्या सिखाऊं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिखा देती हूँ। हाँ, फिर न्यूमेरिकल कर देंगे इसके ऊपर, सिंपल है बहुत। हमने तुम लोगों को कल रेफरेंस इलेक्ट्रोड सिखाऊंगी, अगर ये आज हो गया तो। फास्ट फास्ट लिखो बच्चों। दिख रहा है ठीक से? When you're done, please let me know, huh?
This page is done, बच्चों. Yes, miss. Next page Wait, दिखाओ. Wait, miss. Wait. Okay. अच्छे से समझ के लिखो. हाँ? Miss left में. Done, बच्चों. Question लिख दिए. चलो. इस वो पेज दिखाना लास्ट. समझ के लिखना लेकिन. क्या इस दिखाओ? वो पेज. पेज. अच्छा. वो okay. पेज. वो. कौन सा पेज? यही ना. हाँ. हो गया. चलो. नेक्स्ट पेज लिख लो. फटाफट एकदम. Super लो ना कहना. हो गया मिस.
सबका हो गया बच्चों? हाँ चलो मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, तुम लोग खाली एक नॉन स्टिक क्वेश्चन लिख के दिखाओ, सो दैट आई विल आल्सो कम टू नो दैट आपको आता है। Cr solid, Cr3 plus, Pt solid, chlorine gas, 1 atmosphere, HCl, 1 molar is also 1 molar। इसका आपको नॉन स्टिक इक्वेशन लिखना है। चलो फास्ट, you will get only 2 minutes to do this। गैस इलेक्ट्रोड, पहले इक्वेशन लिखो and then apply this into the non-stick equation। हो गया? ओके, आई थिंक हो गया सबका। चलो मैं डायरेक्टली इक्वेशन लिखती हूँ। रिडक्शन ना, 2Cl माइनस, नहीं रुको कुछ तो गड़बड़ किया मैंने, एक मिनट। इसका रिडक्शन होएगा, रिडक्शन मतलब माइनस में जाने का है, हाँ तो ठीक है। 2 क्लोरीन, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2Cl माइनस, रिडक्शन हो गया। और क्रोमियम का हो जाएगा Cr सॉलिड, Cr3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये सब किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 से। सो 3 6 6, और ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 2 6 बराबर। तो नॉस्ट इक्वेशन क्या आएगा, इधर लिखती हूँ। E of the cell is equals to E naught of the cell minus 0.0592 upon 6. Is it right? Log to the base 10. 6 electron cancel. इधर आएगा क्लोरीन 2Cl 2Cr ये, and then 6Cl minus plus 2Cr3 plus, तो यहाँ पे आ जाएगा Cl minus raised to 6 and Cr3 plus raised to 2 बराबर है, डिवाइडेड बाय ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो लिखेंगे ही नहीं, दिस इज 1। सबका राइट है? हेलो
इज इट मैम राइट? प्रेशर नहीं आएगा क्या? नहीं आएगा क्योंकि क्लोरीन का 1 एटमॉस्फेयर लिखा है ना, so it अच्छा is 1. चाहिए तो लिख सकते हो P of Cl2 you can write, no problem, but it is 1 only, तो नहीं लिखा तो भी चलेगा. So सिर्फ Cl minus raised to 6 and Cr3 plus raised to 2, बस. सबका राइट है? ओके. मतलब नॉन्स्ट इक्वेशन तुम लोग को आ गया अच्छे से? क्या मैं ये ऐसे कंसिडर कर लूं कि तुम लोगों को अच्छे से समझ आ यस गया नॉन्स्ट इक्वेशन? ओके चलो, अभी हम लोग जाएंगे, एक छोटा सा टॉपिक है, गिव्स फ्री एनर्जी. ठीक है, खाली फॉर्मूला है उसका, डेरिवेशन वगैरह कुछ नहीं है, खाली फॉर्मूला याद रखना है. गिव्स फ्री एनर्जी, फॉर्मूला है डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई ऑफ द सेल. ठीक है, व्हाट इज डेल्टा जी? आपने थर्मो में भी पढ़ा है ना, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी. n is equals to number of electrons involved. फिर क्या है? f, बोलो f क्या है? Faraday's constant 96500 कूलम. हाँ, it is Faraday's constant. E of the cell क्या है? EMF of the cell. ठीक है, ये हो गया. अब एक और इक्वेशन है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल. बताओ क्या डिफरेंस है दोनों में? ई नॉट ऑफ सेल. करेक्ट. ये डेल्टा, अभी देखो आप बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं. ई ऑफ द सेल के लिए फॉर्मूला क्या है? नॉन्स्ट इक्वेशन वाला, E of the cell is equals to E naught of the cell minus 0.0592 upon n log to the base 10 product upon reactant. E naught of the cell का फॉर्मूला क्या है? E naught of cathode minus E naught of anode. समझा? तो यहाँ पर हमेशा गड़बड़ होता है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. ठीक है, ये समझ आ गया? नेक्स्ट इज एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल, अभी लिखो मत, एक साथ लिखो, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एंड equilibrium constant. ठीक है, so I will write down here delta G is equals to delta G naught is equals to minus NF E naught of the cell. This is equation 1. Also in thermodynamics we have done delta G naught is equals to minus RT ln K. याद आ गया? We have done this thermo में. Now I can equate these two equations. So I will write down minus NF E naught of the cell is equals to minus RT ln K. चलो माइनस माइनस कैंसिल हो गया. E naught of the cell is equals to RT upon NF ln K. चलो मुझे अभी ln नहीं चाहिए, log चाहिए. क्या करूँ? 2.303 से माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा. करेक्ट. तो 2.303 RT upon NF log to the base 10 K. इतना क्लियर? अब ये नंबर का मतलब तो मुझे पता ही है ना डायरेक्टली. इट इज 0.0592 upon n log to the base 10 K. This is the expression for equilibrium constant. कितना इजी है? आया समझ में सबको बच्चों? हेलो, यस मैम. यस सबको समझ आया अच्छे से? एकदम इजी है. चलो अब ये फटाफट से लिख लो. लिखो, ये लिखो पहले पूरा. देखो अभी ये कितने फॉर्मूला हो गए पता है अपने? 4. एक हो गया ई नॉट ऑफ द सेल का, एक ई ऑफ द सेल का, 4 2 हो गया, ये 3 4 और ये 5, टोटल 5 फॉर्मूला. ठीक है, लिख लो. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 1 2 और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला. कॉपी डाउन दिस प्लीज. नहीं समझा होगा तो पूछो.
डन। चलो, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये डेरिवेशन कभी कभार 2 मार्क्स के लिए आ जाता है। ओके, आई थिंक हो गया सबका लिख के। एनी क्वेश्चन सो फार बच्चों? गैल्वेनिक सेल के चैप्टर का सेकंड पार्ट खत्म होता है, व्हिच इज कॉल्ड एज गैल्वेनिक सेल। चलो बुक लेके बैठो फटाफट, वी विल सॉल्व न्यूमेरिकल्स नाउ। ओके, सबका हो गया ना? चलो, नाउ राइट अ क्वेश्चन। हाँ, रुको चलो दो। ओके, दो ही क्वेश्चन है इधर। ठीक है, लिखो चलो। Calculate the voltage of the cell. Calculate. Hello, ready everyone? Yes, ma'am. हाँ हाँ, लिखो। Calculate the voltage of the cell. Cell जो दिया हुआ है वो है, cell अभी लिखो। Sn solid is in contact with Sn2 plus 0.02 molar दिया है. It is in contact with Ag plus 0.01 molar and Ag solid. इसका अपने को voltage निकालना है at 25 degree Celsius. At 25 degree Celsius, लिखो E naught of Sn is given as minus 0.136 volts and E naught of Ag is also given, which is 0.800 volt. चलो, सबसे पहला काम क्या है आपका? We have to calculate E of the cell. तो फॉर्मूला लिखेंगे E of the cell is equals to E naught of the cell minus 0.0592 upon n log to the base 10 concentration of product upon concentration of reactant. इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मुझे सबसे पहले करना क्या है? आई हैव टू राइट डाउन द सेल रिएक्शन. चलो लिखो तुम लोग खुद से सेल रिएक्शन फटाफट. आएगा ना अभी? राइट डाउन द सेल रिएक्शन फॉर दिस सेल. लिखो और मुझे आंसर बोलो.
चलो हो गया सेल रिएक्शन बच्चों। चलो बताओ क्या आया प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। E of the cell is equals to E naught of the cell minus 0.0592 upon n कितना आया? What is the value for n? 2 2 log to the base 10। प्रोडक्ट क्या आएगा बताओ फटाफट। SN2 plus ओके concentration of SN2 plus divided by concentration of Ag plus raised to 2 आएगा ना। इतना आया सबको? yes ma'am सबको आया बच्चों? Yes, ma'am. गर्ल्स ओके। Yes, अभी ma'am. देखो मुझे E नॉट ऑफ द सेल नहीं पता है ना, कैसे करेंगे? E नॉट ऑफ द सेल, E नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल्स टू E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड। चलो कैथोड कौन है इन दोनों में से? सिल्वर इज योर कैथोड। तो 0.800 माइनस ऑफ माइनस 0.136, बताओ कितना आंसर है? बाद में सिस्टमैटिकली लिखो, अभी टेंशन मत लो, मैं दूंगी आपको टाइम, अभी खाली रफली सॉल्व करके बताओ। 0.800 एंड 0.136 ऐड हो जाएगा ना, 6 936. 3 हाँ 0.936 ठीक है। तो इट इज 0.936 वोल्ट। ये सॉल्व करने को 1 मार्क्स मिलता है, याद रखो। ये हो गया E नॉट ऑफ द सेल। चलो अब हम जाएंगे हमारे मेन इक्वेशन की तरफ। आई विल राइट ऑन योर E ऑफ द सेल इज इक्वल्स टू 0.936 माइनस 0.0592 अपॉन 2 log to the base 10। अब आप बोलोगे मैं इसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया है ना, यही कॉन्सेंट्रेशन है, ये देखो। तो इट इज 0.02 डिवाइडेड बाय 0.01 का स्क्वायर। इतना क्लियर? अब सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, उसका लॉग निकालना है, फिर डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करने का। तो ये सॉल्व कर देती हूँ। 2 1 जा 0.02 फिर 8 6 बराबर ना। तो ये ऐसे रहेगा 0.936 माइनस 0.0286 ठीक है, log टू द बेस 10। इसको बना देंगे 2 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0.01 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा ना। यस और नो? देखो ना, अगर इसको मैं ऐसे बनाती हूँ, हाँ 0.0296, आई एम सो सॉरी, 0.0296 करेक्ट। देखो इसको मैं क्या करूंगी, 0.01 इधर है इंटू 0.01, इट इज 1 इंटू 10⁻², इट इज 1 इंटू 10⁻²। तो क्या बन गया? 10⁻⁴ बन गया। सो आई विल राइट डाउन हियर 1 इंटू 10⁻⁴। समझा क्या ये? हेलो? Yes, ma'am. Yes, हाँ ma'am. yes ये ऊपर ma'am जाएगा ठीक है। 0.936 माइनस 0.0296 log टू द बेस 10। ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 10⁻² और +4, और 4 में से 2 गया तो 2, मतलब 200 लिखूं मैं, है ना? ये 4 ऊपर गया, +4 हो गया, 4 में से 2 गया, 2 बचा, मतलब 10⁻², मतलब 200 हो जाएगा। अभी 200 का लॉग देखो फटाक से, yes ma'am 0.296 लॉग ऑफ दिस कितना हो जाएगा? 2.3010। 2 का लॉग 3010 है। अब पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है कि इसका भी लॉग एंटी लॉग लेना है? अरे मैं एक 0 भूल गई, सॉरी। क्या करना है? इसका मल्टीप्लाई करना है कि लॉग एंटी लॉग करना है? अगर लॉग एंटी लॉग करना है तो इधर साइड में ही करने का। लॉग ऑफ 296 प्लस लॉग ऑफ 2.3010 इंटू 10⁻² कितना शिफ्ट किया मैंने? 1 2 3 4 -4। लॉग एंटी लॉग करके वहां से इधर सब्स्टिट्यूट करो और फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। क्या करना है बोलो, तुम लोग के ऊपर है। व्हाट यू वांट टू डू? हेलो? क्या? को मल्टी
हाँ ठीक है, जो करना करो। पहले इतना लिखो, लिख लो पहले इतना, है ना? कि सॉल्व करते हो, क्या करते हो? बस लिख के पहले। हाँ पहले लिख लो बराबर, पहले लिख लो इतना सब यहाँ तक। समझा ना मैंने कैसे सिंप्लीफाई किया? देखो पहले इसको सिंप्लीफाई किया और फिर इसका लॉग निकाल दिया। इसका एंटी लॉग क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये लॉग फॉर्मूला में था, हम लोग को इसको एंटी लॉग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब हम लोग लॉग अप्लाई करते, अभी यहाँ पे मैंने लॉग अप्लाई किया तो यहाँ पे मैं एंटी लॉग करूंगी। कॉपी डाउन दिस फर्स्ट एंड देन सॉल्व दिस, फटाफट करो। हो जाएगा तो बोलो इधर तक, फिर मैं स्टैंड नीचे रखती हूँ, हाथ में पकड़ा है मैंने। ये 9 है बच्चों, 0.0296। किसी को कुछ नहीं समझा होगा कोई स्टेप तो पूछो प्लीज। हो गया बच्चों इधर तक लिख के? फिनिश्ड? अभी सॉल्व करो इसको। किसका आंसर कन्हैया? फाइनल आंसर? इतना फास्ट कैसे हो गया? कैसे किया? लॉग से किया या कैलसी पे किया कन्हैया? अच्छा मल्टीप्लाई करके किया, ठीक है ठीक है, बराबर है आंसर। और सब अच्छे से लिखो हाँ बुक में।
Okay, I have got so many answers. प्रियंका गलत है, कौन सा आंसर दिखाया तुमने, मतलब कौन सा आंसर ये फाइनल वाला? ये साक्षी, it is 0.068 for this part. प्रियंका आपका फाइनल आंसर गलत है बेटा. हाँ कशिश, करेक्ट आंसर है. कशिश गॉट परफेक्ट आंसर. इवन कन्हैया गॉट परफेक्ट आंसर. बाकी सबको रॉन्ग मिला है. चेक करो. चलो कितना आंसर आ गया? यस प्रणीता करेक्ट है, परफेक्ट. दिवेश एक जीरो ज्यादा हो गया. 0.086 नहीं है, 0.86 है. देखो चेक करो. इसका मल्टीप्लिकेशन का आंसर है जो भी है 0.936 माइनस 0.0681 आएगा और सब्ट्रैक्ट करके you'll get फाइनल आंसर है 0.868 वोल्ट समथिंग. आया सबको? यस करेक्ट. नाउ इट इज करेक्ट दिवेश. चलो नेक्स्ट सम. सबका हो गया? चलो अभी नेक्स्ट सम तुम लोग खुद सॉल्व करोगे. ओके रेडी? Write down the question. The standard potential of the electrode. The standard potential of the electrode. एक इलेक्ट्रोड दिया हुआ है. Zinc solid is in Just repeat. contact with. हाँ second sum. Repeat. हाँ repeat. Okay. The standard potential of the electrode. फिर ये इलेक्ट्रोड लिखो. Zinc solid. Then 2 plus concentration is 0.02 molar is the standard potential of the electrode. The standard potential of the electrode Zn2 plus Zn solid is minus 0.76 volts minus 0.76 volts calculate its potential. Calculate its potential. चलो कैसे करेंगे? एक ही इलेक्ट्रोड दिया है तो पहले इसका रिएक्शन लिखो. Zn2 plus
will take 2 electron and form Zn solid. So E of the cell is equals to E naught of the cell minus 0.0592 upon 2 log to the base 10. देखो Zn solid है ना, तो क्या हो जाएगा 1 divided by concentration of Zn2 plus. ठीक है, उसके बाद E naught of the cell तो दिया है, कितना है माइनस 0.76 माइनस ये हो जाएगा 0.0296 log to the base 10 1 upon कितना है 0.02. ठीक है, पहले इसको सॉल्व करो. माइनस 0.76 माइनस 0.0296. आपकी बुक में क्या किया पता है क्या, इसको ना प्लस कर दिया और इसको log to the base 10 0.02 ऐसे भी कर सकते हैं ना, सही है कि नहीं बोलो. इसको प्लस कर देंगे और इसको रिवर्स कर देंगे, ज्यादा इजी पड़ेगा ना. तो ये हो जाएगा अभी माइनस 0.76 प्लस 0.0296. इसका लॉग लेना पड़ेगा तुम लोग को. एक काम करो, ऐसे कर दो, log ऑफ 2 into 10 raised to minus 2. तो माइनस 0.76 प्लस 0.0296. ध्यान देना, हाँ ठीक है. log of 2 is 0.3010 plus log of 10 raised to minus 2 is minus 2. समझा क्या किया मैंने, log of 2 भी निकालना है, log of 10 raised to minus 2 भी निकालना है. तो log of 2 is 0.3010 and log of 10 raised to minus 2 is minus 2. समझा. अब 2 में से इसको सब्ट्रैक्ट करो, माइनस 0.76 प्लस 0.0296. चलो 2 किधर लिखो, मैं इधर लिखती हूँ 2.0000 0.3010. ठीक है, ये हो जाएगा 199 0. इसको 10 ही रखते हैं, 9. ये भी हो जाएगा 9, हो जाएगा 6, हो जाएगा 1 पॉइंट, मतलब इनटू माइनस 1.6990. अब ये प्लस माइनस वापस से माइनस ही होने वाला है. तो माइनस 0.76 माइनस 0.0296 इंटू 1.6990. चलो तुम लोग को फाइनल करके दे दिया मैंने. अब या तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो या तो लॉग एंटी लॉग निकालो और माइनस माइनस प्लस ऐड हो जाएगा, आंसर आ जाएगा. समझा क्या सबको? कौन सा स्टेप इंपॉर्टेंट था इसमें मुझे बताओ. ये वाला स्टेप, log of 2 प्लस log of 10 raised to minus 2. log of 2 ऐसे लिखा और 10 raised to minus 2 का log minus 2 आ गया. समझा ये सबको? यस लो मैम. सबको, ठीक है लिखो. चलो ये सॉल्व करके मुझे फाइनल आंसर बोलो. तुम लोग सबके टाइम नोट करो. देखो अपने को मोर देन 15 मिनट्स लग रहा है, 15-20 मिनट्स. नहीं समझा होगा तो पूछो हाँ प्लीज. ये समझा कैसे किया, इसको प्लस कर दिया और इसको रिवर्स कर दिया. तो कैसे कर सकते थे, दूसरा मेथड भी था इसका. इसको 10 बनाते, इसको 2 बनाते, फिर वो आगे जाके ऐसे ही आता आंसर फाइनल. प्लीज पूछो, अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो ये माइनस प्लस वापस से माइनस हो जाएगा.
इसको चाहिए तो लॉग एंटी लॉग से भी कर सकते हो। 296 इंटू 10⁻⁴ बना देना और इन दोनों का लॉग एंटी लॉग लेके यू कैन सॉल्व। कैसा करते हो तुम लोग? मल्टीप्लाई करते हो शायद ना? नीचे रखती हूँ स्टैंड। हो गया लिख के? यस कन्हैया, करेक्ट आंसर। बराबर आंसर है। यस कशिश, करेक्ट आंसर। कन्हैया वो माइनस में है यार, लेकिन माइनस साइन डालो। ओके ओके ठीक है। सिद्धेश रॉन्ग हो गया आंसर। यस प्रगति, करेक्ट आंसर। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन का आंसर बताया क्या सिद्धेश? हाँ हाँ मैं हाँ हाँ ओके ओके, समझा समझा, बराबर है, वो बराबर है। इंटू 10⁻² भी रहेगा उसके साथ, है ना? एक्चुअली में वो आंसर ऐसा है, 0.050 वाला है, 0.05029। हाँ बराबर है साक्षी, मल्टीप्लिकेशन का आंसर बराबर है, करेक्ट है साक्षी। अभी ऐड करो दोनों को, 0.76 और उसको ऐड करो। प्रियंका फाइनल आंसर है। प्रियंका भगत रॉन्ग है बेटा, चेक करो। यस दिवेश, करेक्ट आंसर। यस प्रियंका, करेक्ट। 5.8 फाइनल आंसर है क्या प्रियंका? ये सिद्धेश 0.05029 आएगा। फाइनल आंसर नहीं, रॉन्ग है फाइनल आंसर, वो मल्टीप्लिकेशन का बता रहे हो, ऐड तो करो। सिद्धेश, सिद्धेश केदार, हाँ मैं समझा? 0.0 है वो, और उसको ऐड करके आंसर बोलो। नहीं प्रियंका, रॉन्ग है आपका आंसर, आप चेक करो। श्रुतिका का आंसर भी रॉन्ग है, थोड़ा आजू बाजू गलत हो गया। हाँ अभी साक्षी का आंसर करेक्ट है, बराबर है साक्षी। -0.76 -0.05029 ऐसे आएगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो आंसर आएगा -0.810 समथिंग वोल्ट। ये आना चाहिए सबका, चेक कर लो अच्छे से, आराम से करो, घाई मत करो। आया सबका आंसर?
Okay, चलो. Should we go to the next sum? Yes, ma'am. एक और हो जाएगा तब तक. लिखो. Calculate standard gives energy change. Calculate standard gives energy change and equilibrium constant. Calculate standard gives energy change and equilibrium constant at 25 degrees Celsius at 25 degrees Celsius for the cell reaction. For the cell reaction, लिखो cell reaction CD solid plus SN2 plus aqueous. ये मैंने दिया भी था तुम लोगों को. CD2 plus and SN solid. इधर दिया हुआ है E naught of SN minus 0.136 volts and E naught of cadmium is minus 0.403 volt. Write the cell formula. Write the cell formula. क्या क्या कैलकुलेट करना है मुझे? डेल्टा G naught minus NF E naught of the cell and equilibrium constant मतलब K. ठीक है, यहाँ पे देखो, देख के क्या पता चल रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व कितने रहेंगे? देखो ना, +2H2 करेक्ट. ठीक है, तो सेल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं पहले. व्हाट इज द सेल फॉर्मूला? तुम लोगों ने किया भी है ये. कैडमियम का ऑक्सीडेशन हो गया, एसएन का रिडक्शन हो गया, मतलब एसएन यहाँ पे जाएगा, बराबर ना? और ये हो जाएगा SN2 प्लस एक्वियस. कैडमियम का ऑक्सीडेशन हुआ है मतलब CD सॉलिड CD2 प्लस ये भी हो गया एक्वियस. ठीक है, चलो ये हो गया सेल कंस्ट्रक्शन. N तो 2 रहेगा. E naught ऑफ द सेल कैसे निकालेंगे? E naught of the cell is equals to E naught of cathode minus E naught of एनोड. कैथोड क्या है इन दोनों में से? टिन है ना. टिन का कितना था? माइनस 0.136 माइनस ऑफ माइनस 0.403 मतलब 0.136 प्लस 0.403. ओ सॉरी, माइनस आएगा इधर. चलो सब्ट्रैक्ट करो, कितना आंसर आएगा? 0.403 एंड 0.136. ये हो गया 3, ये हो गया 9, ये हो गया 13. 7 आएगा ना? हाँ, और ये हो गया 6 2 0.267 वोल्ट प्लस आएगा 0.267 वोल्ट. अब मुझे क्या निकालना है इससे पहले? डेल्टा G नॉट निकालने का है. तो डेल्टा G नॉट इज इक्वल्स टू माइनस N is 2, F is 96500 इंटू 0.267. यहाँ पे मल्टीप्लाई करते मत बैठना प्लीज. यू कैन राइट माइनस ऐसे ही रखो. 2 इंटू 965 इंटू 10⁻² इंटू इसको 26 बना दो. 26.7 इंटू 10⁻². तो +2 -2 कैंसिल ही हो गया. अब ये माइनस ऐसे ही रखना. log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 965 प्लस log ऑफ 26.7. चलो log एंटी log निकालो, आंसर आ जाएगा. समझा ये सम? अंडरस्टूड एवरीबॉडी? हेलो? यस मैम. हाँ हाँ ठीक है, लिखो. इतना करो पहले, फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का बताते हैं.
कितना सॉल्व करके आंसर बताओ कितना आया। ये माइनस कुछ करो मत, साइन वाइन कुछ चेंज मत करो, इसको ऐसे ही रखो, खाली सॉल्व करो। लिख के हो गया। बराबर है प्रियंका, करेक्ट है। मतलब 1 2 3 4, थोड़ा कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, रुको जरा चेक करने दो। 1 2 नहीं, बराबर है, करेक्ट आंसर है। यस कशिश, करेक्ट। दैट मेनी जूल्स, हाँ, किलो जूल्स में कन्वर्ट करने का होएगा तो -51 आ जाएगा। -51 पॉइंट, बराबर है ना प्रियंका? प्रियंका एंड कशिश को बराबर आंसर मिला है। एकदम करेक्ट है प्रगति। माइनस मत लिखना भूल जाना। करेक्ट है दिवेश, बराबर है। श्रुतिका, इतना सा नंबर कैसे आ सकता है? 5 नंबर आएगा, 5। आपको सिर्फ 3 डिजिट में कैसे आंसर मिला? दिवेश, इट इज करेक्ट। आई थिंक सबका आंसर आ गया। अभी आधा ही सम हुआ है, आधा बाकी है। आंसर आएगा -515352, वॉट एवर इट इज, 531 जूल्स। मतलब 3 पीछे जाओ, 1 2 3, मतलब -551.531 किलो जूल्स। ये आंसर आना चाहिए। आगे बताऊं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला? हेलो। Yes, ma'am. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का अभी देखो, फॉर्मूला क्या था? E naught of the cell is equals to 0.0592 upon n log to the base 10 k। E naught अपने को कितना मिला? 0.267 equal to 0.0592 upon 2 log to the base 10 k। अभी देखो, जब तक यहाँ से log नहीं हटता मैं k नहीं निकाल सकती, तो पहले इन सबको अरेंज कर दो।
तो ये हो जाएगा log to the base 10 k is equals to, ये 2 उधर जाएगा, 0.267 into 2 divided by 0.0592। अभी पहले इसको सॉल्व करेंगे लॉग एंटी लॉग से, तो पहले इसको सबको अच्छे से अरेंज करो। 267 into 2 into 10 raised to minus 3 divided by, I will make this as 5.92 into 10 raised to 1 2 minus 2, हाँ 59 कर दूं क्या? -3 + 3 कैंसिल हो जाएगा, 59 कर देती हूँ, है ना, 10 raised to -3 हो जाएगा। अब ये हो गया 267 into 2, ये तो कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाय 59.2। तो पहले इसको लॉग एंटी लॉग से सॉल्व करो। log of 267 plus log of 2 minus log of 59.2। पहले इतने का आंसर बोलो, चलो शुरू हो जाओ फटाफट। आई होप आप लोग सब लोग लॉग यूज कर रहे हो, ऐसे मैं अज्यूम कर रही हूँ। Arbitrarily I am considering that you all are using logbooks. Yes, Divesh, these are strictly based on the logarithms. So they will give you such numbers that जिसका log आपको पता होगा. Suppose they may give you the log of 10. So log of 10 is 1.000. Log of 2, 0.3010. Or they may give you some cancellation kind of thing. They may give you 2 into 10 raised to minus 2 divided by 1. ऐसे cancellation. मतलब they will give you a number in such a manner that you can cancel or you can get the log also of them. समझा दिवेश? ओके मैम। हाँ, कशिश का आंसर बराबर है। साक्षी पॉइंट का कुछ गड़बड़ कर दिया, 9 पॉइंट था ना, वो 9 पॉइंट रहेगा। इसका आंसर सबका आया 9.020, इतना आया सबका लॉग एंटी लॉग करके। अभी देखो, हाँ ये क्या था, दिस इज लॉग टू द बेस 10 के। अब मैं क्या करूँ, एंटी लॉग ऑन बोथ द साइड्स करेंगे ना। आई विल राइट डाउन एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। सो k इज इक्वल्स टू, वापस से एंटी लॉग निकालो, 9.0203। तो 02 में 03 देखो, हाँ चलेगा दिवेश, नो प्रॉब्लम, करेक्ट इट इज 03, 05, 04, एवरीथिंग विल डू। नाउ टेक आउट द लॉग ऑफ 0, एंटी लॉग ऑफ 02 में 03 एंड टेल मी योर आंसर। क्या है आंसर एंटी लॉग का, बोलो।
हम 1.47 047 ओके 1047। अब देखो इधर पॉइंट आएगा इनटू 10⁻9 है ना, 9 + 1 10 हो जाता है, तो यहाँ पे पॉइंट लगा के इनटू 10⁻9 लिख देने का। ये आपका आंसर है। समझा सबको अच्छे से ये सम? इसलिए Yes, लॉग सॉल्व करते, हाँ लॉग सॉल्व करते रहो करते रहो करते रहो, आ जाएगा एकदम। जितना तुम लोग सॉल्व करोगे ना उतना तुम लोगों के लिए अच्छा है। तुम लोग के पास टेक्स्ट बुक है सबके पास? हाँ Yes, हाँ ma'am. चलो अभी ना होमवर्क के क्वेश्चंस लिखो। पेज नंबर 118 निकालो सब लोग। ओपन पेज नंबर 118। आ गए? क्वेश्चन नंबर 2 का 5, क्वेश्चन नंबर 2 का 5th वन एंड उसी का फॉर्मूला सेल फॉर द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन रिएक्शन, उसी का 8th वन सिखाया है मैंने, वही दे रही हूँ। ठीक है, कुछ ऐसे अलग नहीं दे रही हूँ, सिंपल है काफी। और क्या क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 3 का 5th वन। और ये सब होमवर्क मुझे चाहिए। हाँ, ये मत समझना कि मैं चेक नहीं कर सकती हूँ ऑनलाइन। आई हैव अ ट्रिक टू चेक ऑनलाइन ऑल्सो, और वो मैं आपको बताने नहीं वाली हूँ। इसके बाद फोर्थ वन ट्राई करना, क्वेश्चन नंबर 4 का 4th वन ट्राई करना। 4th एंड बहुत ज्यादा हो जाएगा ना बहुत, चलो ठीक है इतना ही करो, बाकी का मैं ले लूंगी। क्वेश्चन नंबर 4 मैम से मैं ले लूंगी, ठीक है? इतना सॉल्व करो, 1 2 3 तुम लोग सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 2 का कैसे 5th भेजना है एंड होमवर्क? मैं बताती हूँ, आई विल टेल यू, डोंट वरी। चल तुम लोग पहले सॉल्व तो करो। क्वेश्चन नंबर 2 का 5 एंड 8 एंड 3 का 5, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 से जो भी रहेगा दैट आई विल टेक। तुम लोग को नहीं जमेगा इतना सारा, गड़बड़ा दोगे। सिंपल वाले दिए मैंने ये, ठीक है? एनी डाउट्स? अभी एक नया सम लूंगी और नया टॉपिक सिखाऊंगी तो रह जाएगा बीच में, तो नहीं सिखा रही अभी मैं। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड। Yes, please. किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, पूछ सकते हैं। ये सम सॉल्व हुआ सबका ऊपर ये वाला? यस मैम। ठीक है, एक और क्वेश्चन दिया है इधर। मैं सबमिट कब करना है हम लोग? कल, कल ही है ना लेक्चर, मॉर्निंग में। तीन ही, अरे बहुत छोटे छोटे, तुम लोग अभी बैठोगे ना तुम लोग का आधे घंटे में हो जाएगा। अभी तुम लोग फ्लो में ही हो तो सॉल्व ही कर डालो, बहुत सिंपल है। एक में ईएमएफ ऑफ द सेल निकालने का है, एक में सेल कंस्ट्रक्ट करने का है, और एक में कुछ तो है गिव्स एनर्जी, ऐसा कुछ तो है ये वाला। 2 का 5 8 एंड 5। मैं बहुत कम होमवर्क देती हूँ बच्चों से, मैं जनरली बहुत कम होमवर्क देती हूँ। जब 40 न्यूमेरिकल्स थे ना तभी भी मैं सब करवाती थी क्लास में ही, एक आधा दिया तो दिया। इसलिए तुम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो लॉग का, ठीक है? मुझे लगता है वी शुड स्टॉप। पूछना है किसी को कुछ बच्चों आज के लेक्चर का? नेक्स्ट लेक्चर में ये न्यूमेरिकल्स जो भी है वो कर लेंगे। कल का लेक्चर मुझे लगता है न्यूमेरिकल्स में ही जाएगा, और परसों मॉर्निंग और इवनिंग, नहीं परसों मॉर्निंग में ही रहेगा लेक्चर, यस। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे रेफरेंस इलेक्ट्रोड परसों के दिन। कल अपना न्यूमेरिकल में ही जाएगा टाइम में भी। तुम लोग अगर स्लो करोगे तो इसमें जाएगा, अगर फास्ट करोगे तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड कल स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है? आई होप इट इज वेरी क्लियर आज का लेक्चर। यस मैम। ओके Yes. चलो अभी कल मिलते हैं, होमवर्क कर लो, ठीक है? एंड करूँ? बाय बाय।
Enjoy Bye, your Sunday. miss. Welcome. Bye. Have a good day.